Okay, peace be with you, my dear students and my lecturers and the parents who are watching and listening me. Last time we studied about the properties of matter. Matter is a substance which have a certain mass and it covers some space that is known as its volume. Okay, matter, after reading the matter, we go with the different properties and different laws like Archimedes principle. We also study Pascal law. So today, this is the last topic of the lesson. And as you see on my screen, you can see there is a material. You can see there are three things attached with a vertical support. One is a metallic spring and other is a rubber, you can say rubber stick, and the third one is a wooden plank, you can see. So here you can see the topic is elasticity. You know very well that when we apply force on a certain body, this force causes deformation in the shape of that material. This deformation may be in the form of length or it may be in the form of volume. Okay, according to the definition of elastic body, we say that body elastic if we apply some force or pressure on the body and the body changes its position, that changes its shape. And when the force is ceased, I mean when the force is removed, the body comes back into its initial stage or the initial state. So this ability, this you can say property of the body is called elasticity. Elasticity is a property, it is an ability, it is a characteristic of the materials. तो आप जानते हैं कि सारे मटेरियल जो होते हैं उनमें इलास्टिसिटी एक जैसी नहीं होती. देखने में यूं लगता है कि जो इलास्टिसिटी है वो जो सॉफ्ट बॉडीज हैं, जो रबर मटेरियल्स हैं, उनमें ज्यादा है. लेकिन एक्चुअली जब हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं तो हम इलास्टिसिटी उस बॉडी को ज्यादा इलास्टिक बॉडी कहते हैं जिस बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस यानी ज्यादा फोर्स बर्दाश्त करने की काबिलियत हो. तो इसका मतलब है कि मेटल्स जो हैं क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग होती हैं तो हम उनको ज्यादा इलास्टिक कहते हैं. इसलिए जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं या जो स्प्रिंग्स होते हैं या जो जंपी ट्रैक्स होते हैं वो कोशिश किए जाते हैं कि उनमें मेटल के पार्ट्स यूज किए जाएं. तो this is how we call the term elasticity and the elastic body. Elastic body are those body or those material which exhibit the characteristic of elasticity. Those bodies are known as elastic body. Okay, according to the definition, you will memorize this definition. The property of a body, you will learn it by heart. The property of a body to restore its original size and shape as the deforming force ceases to act is called elasticity. Okay, so now the property of a body to restore its original size and shape as the deforming force ceases to act is called elasticity. यानी जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स हम लगाते हैं और फोर्स सीज करने के बाद, सीज करने का मतलब है कि फोर्स को जब हटा दिया जाए, जब फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी अपनी पहली वाली शक्ल पे आ जाए, तो हम उस प्रॉपर्टी को, उस बॉडी की एबिलिटी को कहते हैं इलास्टिसिटी. अच्छा, इलास्टिसिटी जिस वजह से कोई बॉडी शो करता है उसमें दो चीजें एक्ट करती हैं. एक होता है जो उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है, उस फोर्स को कहते हैं स्ट्रेस. और दूसरी जो एबिलिटी है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उस फोर्स की वजह से जो उस बॉडी की या उस मटेरियल की जो हालत बदल जाती है, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्प्रिंग को स्ट्रेच करें, उसकी हालत बदलती है. तो जो हालत बदलने का अमल है, जो उसकी हालत में बदलाव आ जाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन.
तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक प्रेशर होता है, एक फोर्स होती है जो किसी मटेरियल, किसी बॉडी या किसी सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई होती है, और इसको हम डिफाइन करते हैं वही डेफिनेशन जो प्रेशर की होती है. सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस. The force acting on unit area at the surface of a body is called stress. And we have studied the pressure is equal to force divided by area. Similarly, stress is equal to force divided by area. अब हम बात करते हैं दूसरा जो इसके जो फैक्टर है, दैट इज स्ट्रेन. अच्छा, प्रेशर का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही यूनिट जो है वो स्ट्रेस का है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेन, स्ट्रेन दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट इलास्टिसिटी शो करता है. स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन वो चेंज होती है, वो इजाफा होता है, वो डिफॉर्मेशन होती है जो स्ट्रेस की वजह से आती है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी यहाँ पर एक स्प्रिंग है, और जब इस स्प्रिंग के साथ वेट हैंग किया गया है तो क्या हुआ है? ये स्प्रिंग जो है ये एक्सपैंड हो गया है, इसकी लेंथ बढ़ गई है. अगर ये जो पॉइंटर है पहले यहाँ पर था, तो जैसे ही हमने इस पर वेट लटकाया है, फोर्स लगाई है, तो ये इजाफा हो गया है. ये जो इजाफा है इसको हम कहते हैं स्ट्रेन, दैट इंक्रीज इन द लेंथ. व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन जो है ये किस वजह से इजाफा होता है? जो स्ट्रेस होता है. और ये कैसे फाइंड करते हैं? ये हम एक रेशो फाइंड बनाते हैं, जो पहले वाली लेंथ थी और जो बाद वाली लेंथ थी, उन दोनों के दरमियान में जो चेंज आई है. When stress act on a body, it may changes its length, volume और shape. जैसे फोम को दबाते हैं तो वो दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है. जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या रबर बैंड को खींचते हैं तो आप देखते हैं उसकी लेंथ बढ़ जाती है. सो क्या है? a ratio of such a change caused by the stress with the original length. यानी पहली लेंथ को आपने भूलना नहीं है. पहले कितनी लेंथ थी किसी स्प्रिंग की, फिर हमने उसको खींचा, उस पर फोर्स लगाई, और उसकी जो लेंथ में इजाफा हुआ है उसको डेल्टा एल कहते हैं. अगर लेंथ में इजाफा है तो उसको डेल्टा एल कहेंगे, और अगर वॉल्यूम में इजाफा है तो उसको डेल्टा वी कहेंगे. सो इट इज अ रेशियो. व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज अ रेशियो of such a change caused by the stress with the original length or volume or shape is called a strain. So if stress produce a change in the length of an object, then its strain is called tensile strain. जब किसी चीज की लेंथ में इजाफा होता है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं. स्ट्रेन होती है चेंज जो ओरिजिनल लेंथ में और उसमें जो लेंथ में जो इजाफा हुआ है उसकी जो रेशियो होती है. So change or tensile strain is the change in length or divided by original length. मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल सी बताता हूँ. अगर एक स्प्रिंग है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर. कितनी लेंथ है बेटा? 10 सेंटीमीटर. अब आपने उसको उस पर फोर्स लगाई और उसकी लेंथ हो गई 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर. तो अब आप इस लेंथ में चेंज कितनी आई है? हम क्या करेंगे? 14 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? चेंज उसकी लेंथ में. सो उस लेंथ में जो चेंज है 4 यहां पर लिखेंगे, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 10. नीचे डिवाइड करेंगे 10 से. ऊपर क्या आएगा? 4 चेंज इन लेंथ, नीचे ओरिजिनल लेंथ जो 10 है. सो स्ट्रेस हैज नो यूनिट्स, so because it is a ratio, so it is simply a ratio between two similar quantities. So using this law, Hooke explained very nicely, and this is also included in your practical work. You will also perform this experiment in the physics lab. So Hooke said that stress or the strain produced in a body by the strain produced by a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. आसान लफ्जों में ये कह दीजिए कि जो किसी बॉडी में जो स्ट्रेन पैदा होता है वो उस बॉडी के ऊपर जो अप्लाई होता है स्ट्रेस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज्यादा खींचेंगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा पुल करेंगे,
उतना ही किसी चीज के वॉल्यूम में या उसकी लेंथ में इजाफा होता चला जाएगा। तो जितना स्ट्रेस ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रेन ज्यादा होता चला जाएगा। ओके, ये दिया शफीक है। आई एम गोइंग टू एंटर दिया शफीक। ओके, now so Hooke said that strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress। जितना स्ट्रेस ज्यादा हम पैदा करते जाएंगे, जितना वेट इस पे, फॉर ये देखें यहाँ पर ये जो वेट है इसके अंदर हम जैसे जैसे वेट बढ़ाते चले जाएंगे इसमें स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये कहा था हुक ने, इसको हुक लॉ कहते हैं। और दूसरी बात है कि आपने उतना इसके ऊपर लोड डालना है जितना ये बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि अगर हम इसको बेतहाशा फोर्स इस पे लगाते जाएं, बेतहाशा लोड आप इस पे डालते जाएंगे तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग जो है इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, यानी बिगाड़ पैदा हो जाएगा इसमें। ऐसी चेंज आ जाएगी कि इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, ये वापस अपनी पहली वाली हालत में नहीं जा सकेगा। उस हालत को कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, व्हेन द फोर्स इज वेरी एक्सटेंसिव। तो दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज रिटन विद इन द इलास्टिक लिमिट। हर एक चीज की एक लिमिट होती है ना, तो इस लिमिट से ज्यादा तो इस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे। तो लिमिट के अंदर अगर हम फोर्स लगाते रहें तो जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा इसमें स्ट्रेस पैदा होता चला जाएगा। And very nicely we can plot a graph between the extension in the spring plus the force acting on the spring. So you can observe this is the origin, in which you can see with the increase of the extension the force is also increasing, or with the increase of force the extension is also increasing. So you can say there is a straight line. So straight line, this line shows that the force and the extension are directly proportional to each other. तो यहाँ से चलते जाएं, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि इस स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ आकर इसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो खत्म हो गई है और ये स्प्रिंग टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया। लेकिन अगर हम स्प्रिंग पर फोर्स और भी लगाते चले जाएंगे तो ये बेचारा टूट जाएगा, या कोई भी रबर की चीज है या स्प्रिंग है या कुछ भी है वो ब्रेक हो जाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं breaking point. So this is breaking point is the very high force as compared to the limit of the elastic body. तो elastic body की लिमिट से जब हम exceed करते हैं तो वो टूट जाते हैं या elastic limit क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। So mathematically Hooke said that stress is directly proportional to the strain. So directly proportionality, we can change it into equality. So when we put equality sign, so we need to put some constant value. So constant is here. So this is multiplied by strain. So if we divide the strain in this way, so we can say stress over strain is equal to constant. So Hooke's law is applicable on all the solid materials, even on the liquids and gases within the elastic limit. अगर आप किसी गैस को भी ज्यादा प्रेशर करते जाएंगे ना तो सिलेंडर फट जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज हाउ द elasticity and how Hooke explained the term stress and strain. दूसरी बात एक और यहाँ पर है, बहुत ही मशहूर है, बहुत ही कॉमन है और ये प्रैक्टिकल वर्क भी हम इसका करते हैं, यंग्स मॉडुलस। यंग्स इज अ नेम ऑफ अ फिजिस्ट। यंग्स मॉडुलस, यंग्स ने सिर्फ ये कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो स्ट्रेन उसमें पैदा हो जाता है वो उसकी लेंथ में अगर हो रहा है तो किसी चीज की लेंथ बढ़ रही है, जैसे आप रबर बैंड को खींचते हो या मेटल रॉड को पुल किया जाता है दोनों साइड्स पे, तो जो लेंथ में इंक्रीज होती है उस लेंथ में इंक्रीज और उस स्ट्रेस को अगर हम दोनों की रेशो देखें तो हम इसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस। दैट इज called Young's modulus. The ratio of the stress to tensile strain. Tensile strain क्या है? लेंथ में. So Hooke's law जो है वो लेंथ हो, वॉल्यूम हो, विड्थ हो, किसी चीज को भी वो एक्सप्लेन करता है, लेकिन Young's modulus स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करता है लेंथ के बारे में। और ज्यादातर हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि लेंथ में ज्यादा इजाफा होता है जब भी किसी चीज की
लॉन्गिट्यूडनल वे में हम उस पर फोर्स लगाते हैं या स्ट्रेस उस फोर्स को करते हैं. So the ratio of stress to tensile strain is called Young's modulus. Very simple, very brief. The ratio of stress to tensile strain is called Young's modulus. तो जब भी टू के बाद जो लफ्ज आता है ना, जो टू के बाद आता है वो वर्ड वो नीचे हमेशा आएगा. सो रेशियो ऑफ स्ट्रेस जो पहले वर्ड आएगा वो ऊपर आएगा, न्यूमरेटर बनेगा. टू टेंसाइल स्ट्रेन वो नीचे जाएगा. सो यू कैन सी यंग्स मॉडुलस इज y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन. और टेंसाइल स्ट्रेन मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं. टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करते हैं जो इजाफा हुआ है, यानी जो बाद वाली लेंथ है उसमें ओरिजिनल लेंथ को अगर माइनस कर दें. टेंसाइल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं बेटा कि when for example I have explained you that if the length of a spring is 10 centimeter and after applying the force or stress on it, its length becomes 14 centimeter. So you will divide subtract 14 centimeter minus 10 centimeter and you will get 4. So 4 is the change or the tensile strain. So this is known as delta L. डेल्टा एल जो है ये मैंने कहा जैसे 4 है, ये एल क्या है जो लेंथ बढ़ गई बाद में, और एल ओ जो है इसको आप ओरिजिनल लेंथ कह लो जो पहले वाली थी. ठीक है. सो एल माइनस एल नॉट, तो इसको अगर हम माइनस कर दें तो जो चेंज है वो लेंथ में आ जाती है. सो स्ट्रेस का फॉर्मूला वी हैव स्टडीड, दैट इज फोर्स ओवर एरिया, एंड टेंसाइल स्ट्रेन वी नो दैट इज चेंज ओवर ओरिजिनल लेंथ. ऊपर आएगी चेंज यानी 4 डिवाइड बाय 10 in case of the example I explained to you. So L minus L naught we can also write it as delta L. Delta represent the change. So delta L over L naught. So Y, again Y is equal to stress over tensile strain. This is Young's modulus. Y is equal to stress over tensile strain. So stress is equal to force over area. We apply, put the value of stress. So F over A. And this is divided by, so this line represent the division. So division को अगर हम multiplication में change कर देते हैं तो जो देखें L नॉट ऊपर चला जाएगा और डेल्टा L नीचे आ जाएगा. तो ये इस तरह से इसकी नई शक्ल बनेगी F L नॉट over A delta L. So this is Y is equal to Young's modulus, that is F L naught. L naught is the original length of the spring. A is the cross-sectional area of the spring, or the cross-sectional area of the rubber band, or the cross-sectional area of the body which is elongated, जिसकी लेंथ में इजाफा हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. और डेल्टा L क्या है जो उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है. सो द SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. ये देखो L और L कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो बाकी क्या रह जाएगा F ओवर A. सो यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. ये देखिए इसके लिए एक बहुत खूबसूरत सी एग्जांपल है, छोटी सी. एक स्टील वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द -5 मीटर पर मीटर स्क्वायर है, एंड इट स्ट्रेच्ड थ्रू 1 मिलीमीटर. इसको स्ट्रेच किया जाता है, सिर्फ स्टील के थोड़ा सा खेल सकते हैं इसको, तो 1 मिलीमीटर इसकी लंबाई में जो है स्ट्रेस होता है. तो बताइए इसके ऊपर जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी व्हेन द फोर्स इज 10,000. Okay, so this is the data of the question and we apply the formula Young's modulus Y is equal to FL over A delta L. वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर 11 न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. This is the final, and this is the end of the chapter. And before ending it, I would like to show you the value of Young's modulus of few materials. You can see here is aluminium, bone जो है हड्डी, brass, copper, diamond, glass, iron, lead, nickel, rubber, steel, tungsten, wood, parallel grain and wood perpendicular grain. Parallel grain जो है ये अगर लकड़ी ऐसे सीधी कटी हुई है, जैसे ऊपर से नीचे जो ग्रेन्स होते हैं वो सीधी है, और या ग्रेन्स लकड़ी के अगर ऐसे परपेंडिकुलर हैं तो उसके आप देख सकते हैं वैल्यू जो है वो कैसे बदलती है. तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा टंगस्टन की वैल्यू है यंग्स मॉडुलस की, क्योंकि टंगस्टन एक बहुत ही हार्ड मेटल होती है, हार्ड होती है, इसका फिलामेंट होता है
और इसकी फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत गर्म हो जाती है और जलती है. So this is all about, my dear students. There are MCQs. And my dear students, this is your assignment. Tomorrow I will ask you these MCQs. You will give me the answer on your chat box in the form of A, B or C, or I will call a name and then you will give me the answer orally. So for example, encircle the correct answer from the given choices. मैं एक करवा देता हूँ. In which of the following state molecules do not leave their position? Solid, liquid, gas, plasma. And you have studied that solid is the uh, a definite shape of a material, and solid does not change. So molecules of solid does not move from one place to the other, rather they only vibrate from the main position, around the main position. So the answer is solid. Which of the following state molecule do not leave their position? Solid. Liquid, gas and plasma molecules move, vibrate. So you will attempt this exercise, plus this is also your assignment. You will attempt 1 2 3 4 5 6 7 till 7.10. So these are short question answers. 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बनते हैं. 7.10 तक जो करेंगे आप यहाँ तक. So these are short questions. So my dear students, I would appreciate and I would love to see the answers and your perfect responses tomorrow. So till here I would